Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing Unit 8 quadrilaterals and running 8.1 exercise. Let us start question number 10. In this video, we have done already 9 questions of this exercise. Let us start with question number 10. ABCD is a parallelogram, means opposite sides equal. AP and CQ are perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD. Show that triangle APB, this bigger one, is congruent to triangle CQD, this bigger one. And AP is equal to CQ, we need to prove. So if we will prove these two triangles congruent, then by CPCT, these two sides will automatically becomes equal by CPCT. So let us first of all write down the given parts. So dear students, we will write given ABCD is a parallelogram, AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD. Now let us see these two triangles APB. So we will write in triangle APB and triangle CQD. CQD दोनों ले लेते हैं. हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में भी ये एंगल P90 है और यहाँ पर Q. सो एंगल APB is equal to angle CQD, each 90. Both are perpendiculars given to us. Then if I'll see this is a parallelogram with AB is equal to CD, opposite sides equal, AB is equal to CD, we can write given opposite sides of a parallelogram. Now if these two sides are parallels, then the line intersecting the two parallel lines will be the transversal. तो ये ट्रांसवर्सल के इधर एंगल लेफ्ट में और ये राइट में, तो इस ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल डी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल. सो एंगल ABP is equal to angle CDB, CDQ, alternate interior angles. ये हो गया. तो हम अगर रूल को चेक करेंगे तो बेटा वी हैव यूज्ड दिस एंगल, ये एंगल यूज़ किया हमने, वी हैव यूज्ड दिस एंगल एंड दिस साइड, ये अपोजिट साइड इक्वल जब हमने ली तो ये वाली साइड, तो ये साइड एक ही एंगल को टच कर रही है तो एंगल साइड. तो कौन सा रूल बना, देयरफॉर बाय AAS, दिस इज़ नॉट RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, लेकिन तीसरी साइड नहीं है हमारे पास, एंगल है और ये एंगल एक साइड को टच कर रहा है, एक साइड को टच करने वाला ये रूल है. देयरफॉर बाय AAS triangle APB is congruent to triangle CQD. Now say for second part AP is equal to CQ automatically मिल जाएगा हमें by CPCT, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के हैं जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं. सो आई होप इट इज़ वेरी इजी एंड क्लियर टू यू. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. In triangle ABC and DEF, AB is equal to DE and AB is parallel to DE. ये दोनों लाइंस इक्वल और पैरेलल दे रखी हैं. BC is equal to EF and BC is equal पैरेलल टू EF. ये दोनों भी इक्वल पैरेलल हैं. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E, F respectively. Show that quadrilateral ABDE is a parallelogram. हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है. क्वाड्रिलेटरल BEFC ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करना है. देन AD इज़ पैरेलल टू CF प्रूव करना है और इक्वल भी, और अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है. देन AC इज़ इक्वल टू DF, वो मिल ही जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. देन ट्राइंगल ABC इज़ congruent to triangle DEF. Dear students, the question having a lot of parts, but the question is very, very easy. So how? Let me show you. So very first of all, first part is ABED is a parallelogram. Let me shade it to make it clear to you.
तो इस पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला पार्ट हमें दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, इसमें आप देख रहे हैं ए बी इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू डी ई, इट इज़ गिवन टू अस। तो अगर एक पेयर इक्वल पैरेलल होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर भी इक्वल पैरेलल आ जाता है बाय थ्योरम। सो हेंस ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये रिजल्ट हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? दिस इज थ्योरम 8.8। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। कि अगर एक भी पेयर इक्वल पैरेलल है साइड्स का क्वाड्रिलेटरल का तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो बस ये रीज़न लिखना है हमें। सो वी विल राइट इट एज AB. This line AB is equal and parallel to DE. Equal to DE, and also AB is parallel to DE. This therefore this implies AB DE is a parallelogram. Simple हमें इतना सा लिखना है और यहाँ लिख देंगे because a quadrilateral is a parallelogram if it has a pair of equal and parallel sides। कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी एक पेयर अ पेयर ऑफ इक्वल एंड पैरेलल साइड्स उसके पास हैं तो। सो हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ AEFC BEFC BEFC इज अगेन अ पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन है ये दोनों हमें इक्वल पैरेलल दे रखी हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल पैरेलल हैं तो ये भी इक्वल पैरेलल होंगे, हेंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगेन सेम रीज़न। तो सिमिलरली करके लिख देंगे हम सो दैट हमें दोबारा रीज़न ना लिखना पड़े। सिमिलरली एज जैसे कि BC is equal to CF, sorry, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. This implies BCEF is also a parallelogram, and no need to write the reason again because we have written similarly कि इसी तरह से वही reason same. Now third part, AD is parallel to CF. AD is parallel to CF and equal to CF. अब हमें ये दोनों लाइनें इक्वल पैरेलल दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे? देखो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो वहाँ से क्या मिल गया? AD, फर्स्ट लाइन AD इज इक्वल एंड पैरेलल टू BE, इस लाइन के इक्वल पैरेलल मिल गया। सेकेंड पार्ट में हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाया है तो वहाँ से आ गया BE एंड CF आर अपोजिट साइड्स तो ये इक्वल पैरेलल हो जाएंगी। तो फर्स्ट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू सेकंड साइड एंड सेकंड साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये दोनों साइड जब कॉमन के इक्वल पैरेलल हैं तो दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल एंड पैरेलल फ्रॉम 1 and 2। मीन्स 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का, या 1 2 की क्लासमेट में 2 3 की क्लास में है तो दैट मीन्स 1 और 3 की। ये राहुल अजय की क्लास में है और अजय अमन की क्लास में है तो राहुल और अमन भी तो सेम क्लास में हुए, राइट। तो इस तरह से हम थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे। सो फॉर थर्ड पार्ट लेट अस राइट। थर्ड पार्ट में हम पहले लिखेंगे एज फ्रॉम वन फर्स्ट से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, AD is equal to BE and AD is parallel to BE.
एंड फ्रॉम 2, तो इससे मैं फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेती हूँ। सेकंड से हमें मिला ये पैरेललोग्राम, तो वहाँ से हमें ये दोनों साइड्स इक्वल पैरेलल मिली। बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी ई इज पैरेलल टू सी एफ। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख रहे हैं बी ई दोनों में कॉमन है, तो अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। ए डी इज इक्वल टू सी एफ। इसी तरह यहाँ भी बी ई दोनों में कॉमन है, तो ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ, ए सी एफ डी। ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने ए डी और सी एफ को इक्वल पैरेलल शो किया है, तो अगर ये दोनों लाइंस इक्वल पैरेलल हैं, मींस इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर साइड्स का इक्वल पैरेलल हम दिखा चुके हैं। तो दैट मीन्स अगेन बाय द सेम थ्योरम ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम लिखेंगे एज ये वाला ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ बाय थ्योरम 8.8 सेम। ये रिजल्ट आप यहाँ लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज ए डी सी एफ इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, यस, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड हो गई है उसकी, तो ये इक्वल होंगी। ए सी इज इक्वल टू डी एफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए डी सी एफ। तो इसके लिए हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम ऊपर वाले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। सिक्स पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई, गिवन है दोनों इक्वल। ए बी इज इक्वल टू डी ई, रीजन गिवन। देन बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। दिस इज ऑल्सो गिवन। एंड थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, अभी हमने फिफ्थ में प्रूव किया है। ए सी इज इक्वल टू डी एफ यूजिंग फिफ्थ पार्ट। तीनों साइड्स का यूज किया है, देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. So in this way the question is very easy. So I hope it is clear to you. That's all for now. Thank you, my dear students.